it is observed generally that the significance of an Independence Day or the significance of a Republic Day is not very well understood by a lot of people. What it actually means to have this day that we have, and the importance of the Constitution that we have. हम आज जो भी कर पा रहे हैं, whatever freedoms we have, whatever capabilities and opportunities that we have, are because we have enacted a particular constitution and we have ensured that that constitution is what we live by. Correct. ये हमारे लाइफ्स के लिए, हमारे सबके लाइफ्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप लोग एक ऐसे फील्ड में हो जहाँ पे आई एम नॉट श्योर हाउ एक्सपोज्ड यू आर टू. अगर आप खुद इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली यू वुड बी एक्सपोज. अगर आप खुद इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल अफेयर्स, करंट अफेयर्स या ऐसी चीज़ों का आप ध्यान रखें. इट्स नॉट गोइंग टू हैम्पर योर जॉब एज सच. तो इन दैट सेंस अगर आप एक्सपोज नहीं है इन चीज़ों को लेके तो शायद वो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट या पर्सपेक्टिव ना मिले. आप में से कुछ लोग हैं जिनके साथ मेरे कुछ एक्सटेंडेड कॉन्वर्सेशंस होते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें हाईलाइट करता हूँ कभी कभार. व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग इन अ कंट्री लाइक आवर्स. I'm not saying ours is a perfect country. There are many, things that we need to obviously correct in our country also. I'm sure सब लोगों ने शायद वो काफ़ी अच्छी और inspiring movie है, which is rare in our Hindi film industry. But एक one of the few inspiring and valuable movies I think that came out in the last 20 years or so is Rang De Basanti. And it was made by Rakesh Om Prakash Mehra, and very very superb storytelling. The merging of two different timelines, and how the freedom fighters were shown with in the context of today's sort of lost generation of youngsters, and it was a superb storytelling. तो वहाँ पे माधवन का एक कैरेक्टर है. he is an Air Force pilot, and in a conversation he says that no country is perfect and we have to make it perfect. So that is right, and all that is fine. I mean, as long as we apply it, it is good wisdom. But first and foremost, I have always felt that recently I was having this conversation with a couple of other friends of mine, and I was telling them that the most fundamental thing that needs to happen. और ये आप लोग क्योंकि यंगस्टर्स है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ. ये सारी चीज़ें अगर आप अपने काम के साथ समझे और ये सारी चीज़ों को थोड़े भी लेवल पे अगर हम अप्लाई कर पाए या आपके माइंडसेट में कोई शिफ्ट आ पाए, इट इज़ अ ग्रेट थिंग. So one of the first thing that needs to happen is for us to understand the significance of the constitution that we have in our country, which allows us to choose our leaders. Right? ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है. आप लोग यंग लोग हैं, you have your entire life ahead of you. और जब मैं ऐसे आप लोग यंग लोग हैं कहता हूँ, ऐसा नहीं कि मेरी लाइफ खत्म होने वाली है, but you are younger than me at least. So I also fall into the so-called young Indian category at this point, which is the biggest power of our country, that the entire world is looking toward, that India has a young population. 65% of us is below the age of 35 and so on. So it's a great power only and only when we understand what this power means. So पॉलिटिक्स एक ऐसा चीज़ है जिससे लोग हमेशा खुद को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं until and unless आप पॉलिटिक्स में फुल्ली इन्वॉल्व हैं. और ऐसा लोग बिलीव करना पसंद करते हैं कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जो कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा झूठ है. क्योंकि आप चाहे या ना चाहें, आप पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस्ड है. क्योंकि आप जहाँ जिंदा है, आप जो कर रहे हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं उनके डिसीजन पे आपका लाइफ का बहुत बड़ा सेक्शन जो है वो डिपेंड करता है, बहुत ज़्यादा बड़ा. एक्सटर्नल सिचुएशन एक तरीके से अगर मैं कहूँ, almost 100% of external situations of your life is dictated by what is being done at the policy making level. और पॉलिसी मेकिंग लेवल बहुत बड़ा चीज़ है, उसमें आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है, कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ा इम्पैक्ट आपका और मेरा है. एंड दैट इज दैट every 5 years you get that option to choose your leader. करेक्ट. सो ये ऑप्शन जो है ये हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, ये पावर हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, दैट every 5 years you can choose a leader. आप लोग इमेजिन करो, अगर आप एक ऐसे टाइम पे पैदा होते जहाँ पे मोनार्की होता, मोनार्की मतलब राजा महाराजा का रूल होता, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होता कि आपको एक अच्छा देश मिले, कि राजा का बेटा अच्छा निकले. दैट वुड बी योर बेस्ट होप. ऐसा नो थिंक अबाउट, ऐसे इमेजिन करो एक राजा होता हमारे देश का, और उसके बाद कौन राजा बनेगा, आपका कोई कंट्रोल नहीं है उस चीज पे. सीधा सीधा डिसाइडेड है, लॉ है कि राजा का जो बेटा है वो राजा बनेगा नेक्स्ट. अभी वो राजा का बेटा अगर अच्छा लड़का नहीं निकला तो आपका खुद का लाइफ और आपके बच्चों का लाइफ खराब होने वाला है. ये आप श्योर हो जाएंगे और आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में. यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज दैट इज द लॉ, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल बी. अगर राजा का बेटा राजा बनता तो करेक्ट. दैट इज द पावर ऑफ डेमोक्रेसी, दैट every 5 years यू एंड आई गेट टू चूज हु टेक्स डिसीजंस. बहुत बड़ा पावर. और इलेक्शन डे को हम लोग हॉलीडे समझते हैं. जैसे जनरली आप देखते हैं ना, इलेक्शन डे मतलब कि आज छुट्टी. तो ये पावर को एक्सरसाइज करना, इस पावर को समझना कि आपके हाथ में ये कितना बड़ा पावर दिया गया है, हम सबके हाथ में ये कितना बड़ा पावर दिया गया है, जो कि एक
जो हमें 5 साल तक हमारे डिसीजंस लेंगे किस डायरेक्शन में हमारा देश जाएगा, ये चीज़ हमें डिसाइड करने का हमको पावर है। इसका इंपॉर्टेंस समझे, आप सब लोग समझे और इसको एक्सरसाइज करें। इसको अपने क्रिटिकल थिंकिंग के साथ अपने माइंड को यूटिलाइज करके कौन सा पॉलिटिकल लीडर आपके फ्यूचर के लिए, आपके काम के लिए, आपके लाइफ के लिए बेहतर डिसीजंस लेगा, उस बेसिस पे आप लोग इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करें। ये कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा पावर देता है आपको। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस डिस्कशन इज, इंडिया एक ऐसा लौता डेमोक्रेसी है पूरे दुनिया में, राइट? इसके ऊपर आप थोड़ा स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, बट आप वेरीफाई करना चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं। इंडिया पूरे दुनिया में एक लौता ऐसा देश है जहाँ पे एट बर्थ आपको वोटिंग राइट मिलता है और डे 1 से मिला हुआ है ये चीज़। जिस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ 1950 आज के डेट पे, उस दिन से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, लेड बाय बाबा साहब अम्बेडकर एंड द टीम ऑफ अदर पीपल, उन्होंने यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जिसको कहते हैं, मतलब irrespective of gender, irrespective whether you fall into the two main genders, even if you are a transgender, irrespective of color of your skin, irrespective of your religion, irrespective of anything, your social status, you are given the right to vote. ये आपको लग सकता है कि ये कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में ये नॉर्मल चीज़ है। आप दूसरे डेमोक्रेसीज का अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यूएस जैसे कंट्रीज में, बाकी बहुत सारे वेस्टर्न डेमोक्रेसीज में, बहुत सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटीज को इनिशियली वोटिंग राइट नहीं था। पहले से एलिट्स को था, फिर उसके बाद थोड़े दूसरे सिर्फ मर्दों को मिला, औरतों को बहुत टाइम तक नहीं था वोटिंग राइट, फिर बाद में औरतों को इंक्लूड किया गया, बहुत टाइम तक ब्लैक्स को नहीं था, फिर उनको इंक्लूड किया गया। ऐसे सब चीज़ें हुई हैं, ऐसे जो एडवांस देश मानते हैं हम, ऐसे देशों में भी। लेकिन इंडिया में डे 1 जिस दिन ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, उस दिन से यूनिवर्सल फ्रेंचाइज। द ओनली क्वालिफिकेशन इज यू हैव टू बी बोर्न इन इंडिया एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, नो अदर क्वालिफिकेशन। It's a great privilege, it's a great power, and it has the power to change how your country functions and in what direction the country goes, and it is very important. So, because you guys are youngsters, I would like all of you to have that understanding, to have that awareness about the power that you have, respect the significance of this day and also the Independence Day, and participate in at least the most basic political activity that you are empowered to do, that is to go out and vote whenever that time comes. Okay? Happy Republic Day, everyone.